Assalamu alaikum. Welcome students. We are discussing about linked list. Linked list. Linked list is a type of data structure. It is a ordered collection of nodes. We already discussed about that. Nodes. It contains nodes. Each node contains two fields. One is data field. Another one is link field. One is data field, another one is link field. Data field, we also call this as information field. This means it contains actual information or actual data is saved in this. Link field, it contains the address of the next node. Like that, each node contains two fields. The last node in the linked list contains, in that the link field contains the null value. If last field, for example, this is the last field, if it is null, then it is the last node. This is about linked list. Now we will see different types of operations in linked list. There are mainly 6 operations are there in linked list. See one by one. First is creating a linked list. Next, traversing is a linked list. Next, inserting an item into the linked list. Next, deleting the item from the linked list. Next, searching. If you want to search any element, searching the element in the linked list. Last, merging. These are the 6 operations which we perform on linked list. We already discussed these things. Creating क्या है, traversing क्या है, inserting, deleting, searching, merging. ये हम already previous classes में इसके बारे में discuss कर चुके हैं. Now we will see one by one in linked list these operations. Now we will go for first creating a linked list. Creating a linked list means when we create one element, one node. Here creating means one node we are creating. How many nodes we require? We create using here. For that creating, we are using structures. These are the data types. We derive data types. Structures are the derived data types, which we already discussed in first year. First year you see we already discussed about these structures. Structures क्या है इसके बारे में C लैंग्वेज में हम पढ़ चुके हैं structures के बारे में. Now we will see using structures how we are creating the linked list. Clear? Now we will see how we basic structure and everything. To create a structure, the definition is we are using struct keyword. After that, here we are using the user defined name. For example, I am giving the name node. Node is a name given. Within the flower brackets, it contains the body of the structure. Within the body, what are the variables we require? We are adding it. Structure is nothing but it is a collection of elements. Structure is a collection of elements of different data types. Linked list ये array के बारे में हम पढ़े हैं ना. Array it is also a collection of element of the same data type. Array के अंदर same data type को हम उसका एक collection को एक array कहेंगे. Structure के अंदर different data types अलग-अलग integer भी हो, character भी हो, floating pointable, इसका एक collection अलग-अलग data types को अगर हम combine करके एक collection बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम structure use करेंगे. So body of the structure contains it is a collection of data types. It is a collection of elements of different data types. In linked list, we are discussing about only singly linked list. For your syllabus, only we are discussing singly linked list. Singly linked list contains only two fields. One is the data field, another is the link field.
Data field may be a integer, character or floating point or double anything. Link field it is a pointer because link field क्या होता है वो एड्रेस उसमें सेव करते हैं तो एड्रेस का मतलब होता है पॉइंटर हम यूज करते हैं एड्रेस सेव करने के लिए। सो ये स्ट्रक्चर के अंदर हम दो फील्ड्स क्रिएट करेंगे। ये वेरिएबल फॉर एग्जांपल हम इंटीजर यूज करें, नंबर सेव करना चाह रहे हैं इंटीजर, इसे नाम हम जो भी दे सकते हैं आई एम गिविंग नेम डेटा नाम दे रहा हूं, ये एक फील्ड है। और एक फील्ड हमें चाहिए वो लिंक चाहिए, लिंक एड्रेस, वो लिंक सेम नोड को रिप्रेजेंट करेगा। लिंक फील्ड वो क्या करेगा सेम नोड को रिप्रेजेंट करेगा, इसके लिए हम सेम नोड का एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे, सेम नोड का ये नोड नेम देंगे, नोड स्टार नेम जो भी नाम हम दे सकते हैं, लिंक मैं नाम दे रहा हूं लिंक, क्लोज द फ्लावर ब्रैकेट सेमीकोलन। यहाँ पे देखिए पॉइंटर, ऑलवेज रिमेंबर पॉइंटर वी आर क्रिएटेड यूजिंग द स्टार ऑपरेटर यूज करेंगे। सेपरेट चैप्टर इज देयर, पॉइंटर्स का अलग चैप्टर है, जब हम डिस्कस करेंगे तो पॉइंटर्स के बारे में कंप्लीट उसके अंदर डिस्कस करेंगे। जस्ट रिमेंबर हाउ टू क्रिएट द पॉइंटर, इट इज द डेटा टाइप स्टार एंड द वेरिएबल लिंक, पॉइंटर वेरिएबल। सो दिस इज ए, अब यहाँ पे क्या है लिंक एक पॉइंटर वेरिएबल है पॉइंटर टाइप का, इट इज ए पॉइंटर वेरिएबल ऑफ टाइप नोड टाइप का वेरिएबल ये है। अब इस स्ट्रक्चर का हमें एक सेपरेट एक वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं, हर स्ट्रक्चर का वेरिएबल हम क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह से क्लास के बारे में याद है ना, क्लास हम डिफाइन करेंगे, उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्लास के अंदर के वेरिएबल्स को फंक्शंस को यूज करेंगे। क्लास में स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, द मेन डिफरेंस इज क्लास के अंदर हम दोनों डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन दोनों को कंबाइन करके ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे एक्सेस करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, फंक्शंस ले रहेंगे इसके अंदर, डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को हम यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं स्ट्रक्चर के अंदर। क्लियर? इतना याद रखिए स्ट्रक्चर और क्लास में डिफरेंस, क्लास कंटेन्स बोथ वेरिएबल्स एंड फंक्शन, बट स्ट्रक्चर कंटेन्स ओनली वेरिएबल्स, डिफरेंट डेटा टाइप्स की वेरिएबल। क्लियर? अब इस स्ट्रक्चर का हम एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, वेरिएबल डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्चर का नाम देंगे, उसके बाद वेरिएबल हमें जो वेरिएबल चाहिए वो वेरिएबल हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये नोड इज द स्ट्रक्चर नेम, इसके वेरिएबल्स हम क्रिएट कर रहे हैं, वी कैन क्रिएट मल्टीपल वेरिएबल्स, हम मल्टीपल वेरिएबल्स को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एक ही में। और फॉर एग्जांपल मैं दो वेरिएबल्स क्रिएट कर रहा हूँ, दो वेरिएबल्स मतलब दो नोड्स हो गए क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसके लिए हम यूज करेंगे स्टार और वेरिएबल नेम जो भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ node1 स्टार node2 लास्ट में सेमीकोलन, जितने भी वेरिएबल्स हम क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम दो वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं, एक node1 है और एक node2 है, दो वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं। ये node1 इट कंटेन्स टू फील्ड, एक है इंटीजर टाइप और एक है नोड टाइप, ये कंबाइन, ये दोनों मिला के कंबाइन एक ग्रुप बनेगा, एक नोड बनेगा इस तरह। ये वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए हम ये ऐसे भी कर सकते हैं, इसका और एक वे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग हियर, यहाँ पे लिखने के बदल हम यहीं पे क्रिएट कर सकते हैं। फ्लावर ब्रैकेट होने के बाद सेमीकोलन डालने से पहले हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं node1 स्टार node2 लास्ट में सेमीकोलन, यही पे भी हम, इसका मतलब है ये नोड की ये वेरिएबल क्रिएट कर, या सेमीकोलन यहाँ पे एंड कर दिए, सेपरेट से स्ट्रक्चर नेम और वेरिएबल नेम हम दे सकते हैं। ये है हाउ वी आर क्रिएटिंग द नोड यूजिंग द स्ट्रक्चर। जब हम नोड क्रिएट करेंगे, यहाँ पे जितने नोड क्रिएट कर रहे हैं उतने नोड के हिसाब से मेमोरी अलोकेट होगी। दो नोड है तो दो नोड के लिए मेमोरी अलोकेट होगी, अगर हमें और एक एक्स्ट्रा नोड चाहिए तो हम नहीं कर सकते, जब तक हम नोड को डिक्लेयर नहीं करते नहीं कर सकते। इसके लिए हम यूज करेंगे डायनामिक मेमोरी अलोकेशन।
डायनामिक मेमोरी अलोकेशन अच्छी तरह याद रखिए, ये है स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन और एक है डायनामिक। स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन के लिए हम यूज करेंगे अरे। प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में मैंने बताया है, फिर एक बार बता रहा हूं। डायनामिक मतलब इसके लिए हम यूज करेंगे लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट मेमोरी अलोकेट करने के लिए। अब स्टैटिक और डायनामिक का मतलब क्या है? स्टैटिक मेमोरी अलोकेशन मतलब मेमोरी अलोकेट होगा जो फिक्स होगा। ये प्रोग्राम जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने से पहले मेमोरी अलोकेट हो जाएगा और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन वी कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ द मेमोरी। जो मेमोरी अलोकेट हुआ है वो अलोकेटेड मेमोरी का साइज हम बढ़ा नहीं सकते या उसे कम भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इंक्रीज और वी कैन नॉट डिक्रीज द साइज ऑफ द अलोकेटेड मेमोरी। That is static. Static means fixed. Fixed memory it is. During execution we cannot change the size of the memory. Dynamic मतलब ये memory allocate होगा during the execution. जब program run होगा, running के दौरान in between that whenever we require at that time we are ऐसे allocating the memory. That is dynamic. It is fixed. It is changing during the execution. We cannot change the memory allocated as static. During execution we can change, we can increase or we can decrease using the dynamic memory allocation. समझ में आ रहा है स्टैटिक और डायनामिक क्या होता है? अब चलिए ये डायनामिक मेमोरी अलोकेशन। अब हम मेन कॉन्सेप्ट मैंने लिंक्ड लिस्ट स्टार्टिंग में बताया था प्रीवियस क्लास में, हम लिंक्ड लिस्ट यूज कर रहे हैं डायनामिक मेमोरी अलोकेशन के लिए, क्योंकि अरे का एक ड्रॉबैक है, मेन डिसएडवांटेज, we cannot change the memory during execution, that is size is fixed. To overcome from that we are using linked list, here we are using dynamic memory allocation. Now we will see to allocate the memory dynamically we are using operators. Two operators are there, one is new operator, another one is delete operator. New operator, yes, this operator we are using to allocate the memory. Delete operator we are using to deallocate the memory. इसके अंदर मेमोरी allocate करेंगे जितनी मेमोरी चाहिए। delete operator के थ्रू अगर वो हमें यूज नहीं है, एक बार allocate किए थे, we use that in future हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो उसे हम रिमूव कर देंगे, मेमोरी फ्री कर देंगे ताकि दूसरे फंक्शन के लिए या दूसरे यूज के लिए हम यूज कर सके, रीयूज कर सके। उसके लिए हम डिलीट ऑपरेटर यूज करेंगे। इसके थ्रू हम मेमोरी डी अलोकेट करेंगे डायनामिकली, डायनामिकली डी अलोकेट करेंगे। ये है न्यू और डिलीट ऑपरेटर। सेम सिर्फ न्यू यूज कर रहे हैं हम, सिर्फ मेमोरी अलोकेट होगी सिंगल स्पेस, जितना जैसा इंटीजर है एक इंटीजर के लिए एक वेरिएबल के लिए मेमोरी अलोकेट होगी। अगर अरे यूज कर रहे हैं हम, उसके लिए हम यूज करेंगे न्यू सबस्क्रिप्ट। ये सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो ये है मेमोरी अलोकेटिंग अरे, अरे के लिए मेमोरी अलोकेट। ये न्यू अरे मींस अलोकेट मेमोरी फॉर अरे। अगर हम ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ये यूज नहीं कर रहे हैं, तो मेमोरी अलोकेटेड फॉर ए सिंगल वेरिएबल, हियर फॉर अरे। सेम डिलीट के अंदर भी हम डिलीट अरे के लिए भी यूज कर सकते हैं। हियर डीअलोकेटिंग द मेमोरी फॉर एन अरे। जो अरे के लिए मेमोरी अलोकेट हुई थी वो मेमोरी हम डीअलोकेट कर सकते हैं ये ऑपरेटर। अंडरस्टैंड? न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। नाउ वी विल सी हाउ वी यूज न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। ये कैसे यूज करते हैं चलिए हम देखते हैं। न्यू और डिलीट ऑपरेटर। नाउ सिंटैक्स फर्स्ट देखेंगे कैसे सिंटैक्स होगा न्यू ऑपरेटर यूज करके। इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स होगा पॉइंटर, पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू, न्यू टाइप। कौन सा टाइप है? डेटा टाइप हम देखें, डेटा टाइप यूज करेंगे सेमीकोलन। अगर अरे यूज कर रहे हैं तो सेम पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू, अरे लेके हम डेटा टाइप दे सकते
या ये हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, डेटा टाइप सबस्क्रिप्ट, ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं इसे। ये सिंटैक्स पॉइंटर इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ये जस्ट हम एड्रेस सेव करने के लिए यूज करेंगे। पॉइंटर इज इक्वल टू न्यू डेटा टाइप। एग्जांपल, इसका एग्जांपल देखिए, हम एक पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं। पहले ये पॉइंटर मतलब इसके लिए पहले हम पॉइंटर को डिक्लेयर करना होगा। एग्जांपल int स्टार टेम्प, ये एक पॉइंटर पहले क्रिएट होगा। अब मेमोरी अलोकेट करने के लिए इस पॉइंटर के लिए हम यूज करेंगे नेम, यूज करेंगे पॉइंटर का टेम्प इज इक्वल टू न्यू ऑपरेटर। ये कौन सा टाइप है? int। अच्छे देखते हैं, देखिए पहले फर्स्ट वी शुड डिक्लेयर द पॉइंटर हम डिक्लेयर करेंगे int। अगर इंटीजर पॉइंटर है तो int स्टार पॉइंटर का नाम दे रहा हूं टेम्प इज द पॉइंटर नेम। Now allocate the memory. Here we are just declaring the variable. Memory allocate कर रहे हैं इस वेरिएबल के लिए, इस पॉइंटर वेरिएबल के लिए। तो कैसा करेंगे? temp is equal to न्यू ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। जब ये न्यू ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो मेमोरी allocate होगी इसके लिए। कितनी मेमोरी allocate होना चाहिए? That we are giving int यहाँ पे दे रहे हैं। int मतलब इंटीजर के लिए 2 बाइट्स, 2 बाइट्स मेमोरी अलोकेट होगी इसके लिए। इसी तरह अगर कैरेक्टर दे रहे हैं, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट। you already know this thing, how many memory allocated for each different data type। डेटा टाइप के हिसाब से मेमोरी अलोकेट होगी। अगर हम इंटीजर दे रहे हैं तो 2 बाइट मेमोरी अलोकेट होगी, कैरेक्टर दे रहे हैं तो 1 बाइट मेमोरी अलोकेट। Clear? That we already studied in first use. Clear? Now, this is how we are allocating the memory using new operator. For example, we want to allocate the memory for an array. Array के लिए हम memory allocate करना चाह रहे हैं, तो same पहले उसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर किए हैं। यहाँ सिर्फ एक इंटीजर के लिए ये 2 बाइट्स allocate होगी। नहीं, हम इसके लिए एक array डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, तो ये तो सेम होगा। यहाँ पे अरे डिक्लेयर नहीं होगा। यहाँ पे हम देखेंगे टेम्प इज इक्वल टू न्यू, कितनी मेमोरी अलोकेट करना है। अगर अरे देना है तो int 5 दे रहे हैं तो 5 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी, ईच ब्लॉक कंटेन्स 2 बाइट्स। एक 5 ब्लॉक्स मेमोरी अलोकेट होगी यहाँ पे, एक ब्लॉक का साइज 2 बाइट्स होगा। ये है फॉर अरे, how we are allocating the memory. Same way deallocating also, हम delete यूज करेंगे ऑपरेटर deallocate करने के लिए। जस्ट उसके लिए क्या करें, अब ये मेमोरी allocate हुई है, इसे डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम यूज करेंगे डिलीट। पॉइंटर का नाम क्या था? temp। This deallocated the memory. Clear? This is about allocating and deallocating the memory. If you have any doubt in this, you can